लेफ्ट में। नहीं, नीचे भी है वाटर फ्रंट। हाँ ये guys, welcome. Hey guys, so me and my husband Vivek, we are staying at the Waterfront Shaw in Lavasa, and this is one of the best hotels that we could find at a short notice. तो यहाँ पे 1 BHK रूम में हम लोग हैं, रूम नंबर 124 है, सेकंड फ्लोर पे है, एंड अभी हम आप लोग को रूम टूर देने वाले हैं. सो अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, दिस इज बेसिकली द हॉल एरिया. So this is like abstract painting which you have here. Then you have a dining table here with 3 chairs. Okay, then you have a small LG television. यहाँ पे 2 doors है. Basically this is the balcony, but it's been bifurcated into 2 parts. This is basically the promenade facing room, जहाँ से आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखेगा. पेड़ दिखेंगे, promenade दिखेगा, lake दिखेगा, and hills भी दिखेंगे. Okay, and I love the curtains. बहुत ही calming vibe दे रहा है मुझे. And this is your sofa set जहाँ पे please ignore this, मेरा handbag रखा हुआ है. Very sweet, compact kind of a coffee table. You have another side table here. We have a lamp here. Let's try turning this on. तो शाम को काफी अच्छा माहौल बनेगा. So now we proceed towards the small cute little kitchen that they have provided you. So basically अगर आपको मैगी वगैरह लेके आना तो आप लेके आ सकते हो, यहाँ पे बना के खा सकते हो. But of course we are here for a day. एक दिन आके खाना बनाना किसको मन करेगा, तो हमने यहीं से ऑर्डर कर लिया है. So they've also given you a microwave from LG. Then there's a kettle. Then you have 2 coffee mugs, and you have some tea coffee sachets, the usual things, Then you have induction, and induction के utensils are here. So in case you are interested in coming here and cooking, you can do that, because the problem is that they only serve continental food like Italian food and like chicken pot pie and fish fry kind of things. So if you're not into continental, then you just might want to cook. Otherwise नीचे कुछ खाने के options दिखे हमें, but अभी 4 बज रहे, तो I don't know कितना available होगा. Then यहाँ पे dish wash करने के लिए भी soap है, which is also very cute. So you have like a very small kitchen setup that all of the things that you can require are there pretty much. And this is the small fridge that they've given you. And ये रहा washroom. Washroom is very basic, nothing much to show you really. There's the basin, and सामने shower area है, and left में the commode is there basically. And you have all your toiletries, hair dryer भी है, which is great. Now we welcome you to the smallest but the cutest bedroom that I and Vivek have ever entered. This is very small, but it's so cute, you guys. So ये bed है, this is not a king size from any angle. This is a queen size bed, okay? And पीछे ये flowery kind of a backdrop है, which I'm finding very aesthetic. And ये रहा wardrobe. It's too big for a 1-day trip, but yeah, if you are planning to work from Lavasa or something, then you can put this to good use. Iron भी है, locker भी है. अच्छा, extra mattress भी है अगर you have too many people coming in. So you can accommodate them. Now this whole space is the luggage area. यहाँ पे हम अपना suitcase अभी चढ़ा देंगे, and then we can easily take out stuff from here. This is a weighing machine, which is a very cute addition to the room. You have your telephone, side lamp, another side table, side lamp, and yeah, you have an amazing AC. And this is a very long full-length mirror, which I'm loving. All girls love full-length mirrors. And then you have a study desk kind of thing, and the chair here. Philips का लैम्प है. यहाँ पे भी आपको एक kettle, water, glasses, etc. is provided. Now what is this even? I don't know. Okay, so whatever channels are available on the TV, they've listed here, which I think makes sense, because काफ़ी hotels में ना आपको idea नहीं रहता है कि आप क्या देख सकते हो. TV में सब कुछ पेड होता है, lot of confusion, but यहाँ पे उन्होंने list कर दिया है. So यहाँ पे भी ना, to enter the balcony, you basically have again 2 doors. So we'll take you to the balcony now. Yeah, so it's too small for 2 people, so Vivek will take you. That's the lake you have there.
तो जैसे कि मैंने बोला, अभी हमने खाना ऑर्डर किया है, तो खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके जब थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे फॉल करेगा, थोड़ी शाम की तरफ हम जाएंगे। बट होप यू लव द रूम टूर। इफ यू डिड, लेट मी नो बाय लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग माय चैनल, ऑल्सो पुट डाउन योर ब्यूटीफुल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम टैबलेट में देख रहे हैं वेड, एंड ये आ गया है हमारा चिकन पिज्ज़ा। इसके पहले हमने क्या क्या खाया? हमने खाया पास्ता, स्पैगेटी, spaghetti pasta, then hot dog. hot dog we didn't order, no, we had extra. Yes, then potato wedges. Yes, potato wedges, and because we were so hungry, हमने सब कुछ खा लिया, एंड अभी हम पिज्ज़ा भी खाने वाले हैं। एंड यहाँ पे वेट चल रहा है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। इसका रिव्यू इस व्लॉग में हम आपको दे देंगे। बट Hey. हे गाइस, सो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, लाइक डिनर। इसके पहले जो आपने शॉर्ट्स देखे वो हम शाम को गए थे, लगभग 7 बजे, 7-7:30 बजे। तभी हमने सिर्फ सोडा पिया था और आइसक्रीम खाया था। उसके बाद बाहर ना लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने बाहर ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था। सो या दैट्स दैट। अभी हम जा रहे हैं टू गेट सम डिनर, एंड दिस इज विव्स, माय हस्बैंड, who is really having a great time with me at Lavasa, but he'll never see it and I'll edit this of course. Otherwise घर में कलेश होना है, नो किसको चाहिए। तो चलिए अभी जाते हैं डिनर के लिए। चलो, bye bye. Good morning. Hey guys, so now we've just gotten up and freshened up. अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो चलिए आप लोग को भी दिखाएंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन है। लेट्स गो। Hey guys, so this is Lavasa for you. एक चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी कि भीड़ ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं थी। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा खाली खाली जगह पे जाना है, डेफिनेटली ट्राई आउट लवासा। बट येस, मानसून के टाइम पे डेफिनेटली इट विल बी मोर वर्थ इट। बट अभी क्या, अभी आप लोग थोड़ा सा विदाउट अम्ब्रेला वो आराम से घूम सकते हो, वो एक चीज़ अच्छी है। सो या दैट। हाय गाइस, सो आप लोगों ने लवासा वाला जो पूरा व्लॉग है वो चेक कर लिया, और मैंने सोचा कि लवासा के ट्रिप के जो डिटेल्स है, लाइक वहाँ पे हम लोग कैसे गए थे, कितना खर्चा हुआ था ट्रांसपोर्टेशन में, इज लवासा रियली वर्थ इट, इज लवासा वेल मेंटेन्ड, वहाँ की कंट्रोवर्सीज क्या है, क्या हमें एक्चुअली वहां पे जाना चाहिए। मैंने सोचा कि वो सारी चीजें मैंने व्लॉग में इंक्लूड नहीं करी थी, तो अलग से बैठ के आप लोग के वो सारे क्वेरीज जो है एड्रेस कर देती हूँ, ताकि अगर आप लोग को एक डिसीजन पे आना पड़े कि आपको लवासा जाना चाहिए कि नहीं, दिस सेक्शन शुड बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर दैट। ओके, सो स्टार्टिंग विद द ट्रांसपोर्टेशन, हमने बसेस, ट्रेन, सब कुछ देखी थी लवासा के लिए, लेकिन डायरेक्टली जो हमें लवासा पहुंचा दे, हमें वैसा ना कोई बस मिला ना कोई ट्रेन मिला, तो हमने कार से जाना ही प्रेफर किया। अभी कार हम लोग जनरली बुक करते हैं गोजो कैब्स से। I'll place the name here. It's basically a app which you can download on both iOS and Android, and it's amazing because the rates are much cheaper than Ola and Uber. And ये ना हम I think हमारे हनीमून के टाइम पे या कभी तो कहीं पे जा रहे थे, and Ola Uber हमने चेक किया, and Google में ही ना ये सर्च ऑप्शन में एक गोजो कैब्स करके आया था, and तब से हम देखते हैं कि गोजो कैब्स के जो रेट्स है वो काफी लोअर रहते हैं कंपेयर टू ओला एंड उबर। तो गोजो कैब्स आप भी ट्राई कर सकते हो। नो प्रमोशन, आई एम जस्ट शेयरिंग माई
experience with you. So हमने वहाँ से एक सेडान बुक किया था. हमारे पास आया था Toyota Etios, जो कि एक बहुत ही comfortable cab होती है. And why did we take a sedan for the two of us? I'll even clarify that. That's because Vivek is a tall guy. He's 5'11". He has long legs, so he prefers going in a sedan rather than a compact car like a Wagoner or Celerio or something like that. So हमने इसलिए sedan किया था. And यहाँ से लवासा जाने का, लवासा से वापस next day आने का पूरा मिला के 6,500 हमें लगा, including fuel charges and drivers charges as well. एंड अलग से ओवर एंड अबव 6,500 हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ा. अभी नवी मुंबई से लवासा हम गए थे बिकॉज वी स्टे इन नवी मुंबई. नवी मुंबई से लवासा वुड बी, आई डोंट नो, आई थिंक वन वे वुड बी क्लोज टू 250 से 300 किलोमीटर्स. सो अगर मैं 250 किलोमीटर्स भी पकड़ू एक वे, मतलब वन वे, सो इट्स 500 किलोमीटर जर्नी. सो 500 किलोमीटर जर्नी के लिए 6,500 आई थिंक इज वेरी रीजनेबल. गोजो में हमें रेट मिल गया. आप भी गोजो कैब चेक कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट अप इज हाउ वाज आवर होटल. वहां पे खाना पीना कैसे था, ऑल ऑफ दैट. सो आवर होटल वाज रियली गुड. आपने व्लॉग में देखा, मैंने आपको पूरा रूम टूर दिया था. पूरा जो डाइनिंग स्पेस था, बेडरूम था, किचन एरिया था, सब कुछ दिखाया मैंने आप लोगों को. तो अगर आप वहां पे ना कुछ चीजें लेके जाते हो और खाना बना के खाना प्रिफर करते हो तो दैट्स ऑफ कोर्स लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन. बट हम दोनों में से ऐसा ना कोई प्रिफर नहीं करता है कि कहीं पे हम जाके भी वहां पे खाना बनाना स्टार्ट कर दे. दैट्स जस्ट आवर वे. आई मीन इट्स वेरी इन, यू नो, गोइंग टू Airbnbs and other hostels and cooking on your own, but somehow I and Vivek we don't prefer that. हम जब घूमने जाते हैं हम पूरा रिलैक्स करना चाहते हैं. एंड खाना बनाना, of course I enjoy it, Vivek doesn't enjoy it, but खाना बनाना is not therapeutic for me or him. So जब हम घूमने जाते हैं we like to leave it on the hotel कि आप ही हमें भाई खाना बना के दे दो, हमसे नहीं हो पाएगा. So basically we never use the kitchen area. बट कमिंग बैक टू द फूड, जो होटल में हम थे ना, वहां पे हमें स्पेसिफिकली बोला गया था कि हम या तो इटालियन खाना ले सकते हैं या तो कॉन्टिनेंटल खाना ले सकते हैं. सो द ऑप्शंस आर लिमिटेड. अगर आप इंडियन या चाइनीज प्रेफर करते हो, आपको वो पर्टिकुलर होटल में शायद उतना ऑप्शंस ना मिले. लेकिन आप क्या कर सकते हो, होटल से निकल के जो प्रोमेनाड एरिया है ना, वहाँ पे एक के बाद खाने पीने के स्टॉल्स है. तो वहाँ पे एक स्टॉल से हमने डिनर में इंडियन खाना खाया था, which was pretty decent, pretty good, not very oily and pretty homely food. तो आप वहां से ले सकते हो. homely food इसलिए क्योंकि वहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस भी ओपन अप हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज है, एंड जिनके स्टूडेंट्स वहाँ पे आसपास हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर फ्लैट्स को रेंट में लेके रहते हैं. सो इतने सारे स्टूडेंट्स होने की वजह से ना वो शॉप्स अप एंड रनिंग थे एंड काफी होमली खाना सर्व कर रहे थे. सो दैट्स अबाउट द फूड. नाउ coming to the main controversy ki is Lavasa even worth it, kya hame jana chahiye, is it well maintained? So guys, Lavasa could have been a beautiful place. I'm not even joking, it could have been a beautiful place. लेकिन लवासा का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है which is maintenance. लवासा is not at all maintained. वहाँ पे जब आप जाओगे तो आप लोगों को ना बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, आधी बिल्डिंग्स के तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में रस्ट लग गया है, ऐसे टाइप की चीजें आपको दिखेंगी वहाँ पे. लेकिन अगर आप वो सारे पोर्शंस को इग्नोर कर सकते हो, वहाँ पे जो मेन जो लेक एरिया है एंड जो उसके सराउंडिंग एरियाज है, जो हिल्स है, उसका अगर आप व्यू एंजॉय कर सकते हो, आई think Lavasa will be a very pleasant experience for you all if you know how to enjoy Lavasa. हम जब लवासा गए थे तो अप्रैल का महीना चल रहा था, मुंबई में बहुत गर्मी थी एंड वहाँ पे मुंबई से 4-5 डिग्रीज नीचे चल रहा था. So we enjoyed the weather. बिकॉज देर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी लवासा के अराउंड की वहाँ पे इट्स नॉट वर्थ इट या मेंटेनेंस का इशू है, तो वहाँ पे उतने ज्यादा लोग जाते भी नहीं, तो क्राउड भी नहीं था, खाली था. तो हमने काफी अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया. नाउ कमिंग टू वेदर, वहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है लाइक बोटिंग एंड साइकिलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. नहीं, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज नहीं हो रही थी. एंड ऐसा भी नहीं था कि मानसून का टाइम था इसलिए वो एक्टिविटीज नहीं हो रही थी. वो एक्टिविटीज नहीं हो रही थी the simple reason being कि there is no maintenance and वहाँ पे शायद कोई vendors भी नहीं थे जो ये activities वहाँ पे organize करे in my view. So नहीं, हमें unfortunately वहाँ पे कोई भी activities नहीं मिली. मैं तो बहुत मन बना के गई थी कि मुझे साइकिलिंग करनी है, मुझे बोटिंग करनी है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला. हमने कैसे टाइम स्पेंड करा, हमने प्रोमेनाड पे वॉक करा, हमने अच्छे पिक्चर्स लिए, मैंने व्लॉग किया था. फिर हमने वेड, जो मूवी आई थी रितेश देशमुख एंड जेनेलिया की, वो हॉटस्टार पे है, वो मूवी हमें बहुत अच्छी लगी थी. वो मूवी हमने पूरी कंप्लीट करी, वहाँ पे खाना पीना किया and we came back home, but it was a very pleasant stay for us because I think it was
just a change, you know, from our mundane lives. एक दिन भी जाके रहोगे तो अच्छा लगेगा. It's a refreshing place. Yes, it's a controversial place. लेकिन वो बहुत आप उसको ना लेवरेज कर सकते हो. मतलब वो जगह को गवर्नमेंट लेवरेज कर सकती थी अगर थोड़ा सा मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाता. तो शायद वो जगह बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही अच्छी जगह बन सकती थी. लेकिन लोग अभी भी पंचगनी, लोनावला, महाबलेश्वर इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि वो सब जगह काफी वेल मेंटेन्ड है. एंड हर जगह आपको होटल्स दिखेंगी एंड घर दिखेंगे. लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारे जगह ऐसे इनकम्प्लीट पड़े हुए थे, कंप्लीट नहीं था, तो वो थोड़ा सा वाइब आपको वहां से मिलेगा. Now another piece of information, when you enter Lavasa ना, आपको वहाँ पे एक टोल गेट टाइप का होता है जहाँ पे I think ₹100 आपको देना पड़ता है and you get a receipt for that ₹100 जब आप enter करते हो Lavasa city, okay? And Lavasa is at a height. ऐसा मत सोचना आपकी लवासा हाइट पे नहीं है. It's not a hill station, but वो हाइट पे है. एंड काफी जो रास्ते हैं ना ऐसे ट्वर्लिंग वाले हैं. सो इफ यू हैव नोजिया या क्या बोलते हैं उसको, मोशन सिकनेस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आपको डेफिनेटली मेडिसिन कैरी करना चाहिए. डोंट थिंक. आई रियली हैड अ प्लेजेंट टाइम. विवेक रियली हैड अ प्लेजेंट टाइम. द प्रोमेनाड एरिया वाज ब्यूटीफुल. बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, भीड़ नहीं था. हमें एक ऐसे जगह पे जाना था जहाँ पे हमें भीड़ ना मिले, वरना यू नो देयर आर महाबलेश्वर एंड पंचगनी व्लॉग्स ऑन माय चैनल, यू कैन चेक देम आउट. वहाँ पे इतनी भीड़ मिलती है हमें जनरली. सो एनीवे, I think we really enjoyed Lavasa. I hope you enjoyed watching the vlog, and I hope you found this portion helpful as well. In case you still have any doubts, queries, questions about Lavasa, whether you should go to Lavasa, you can definitely put down your questions in the comments box below. I will definitely go through each and every question and comment of yours and reply back to you ASAP. And yeah, it was really fun vlogging for you in Lavasa, and I'm right here to help you with any queries that you have regarding Lavasa. I'll see you in my next video, which is going to be really, really soon. Till then, take care, loads and lots of love, you guys. Bye bye.